Hello friends, welcome to this new video lecture of geography subject. Okay, so all master students always ask me about dissertation. So here I have come with a video lecture on how to start and complete dissertation work of masters in geography. Okay, so all master students have dissertation in their last semester. So this is totally new thing they are going to do. So this is my purpose to make you understand what is dissertation and how to do the dissertation by giving this video lecture. Okay, so we will start our lecture. This is some information about me. You can pause and see this. Okay, so the content which are we are going to discuss in this video lecture is what is dissertation, dissertation क्या है, then why research is important. Okay, so importance of research will be discussed. How to select a topic for dissertation, this is the important thing. I have seen कि स्टूडेंट्स जो लोग स्टूडेंट्स है वो अपना टॉपिक डिसाइड नहीं कर पाते हैं, सो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे. देन पॉइंट नीड टू बी कवर इन डिजर्टेशन. In short, the layout. So a proper layout is given by university or your colleges, so that need to be followed by you. Okay, then how to start your dissertation work. Dissertation क्या है, कैसे करना है, समझने के बाद वो कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, that we will be discuss in this video. Then the correct procedure to complete your dissertation on time. Okay, so delay नहीं करना है. आपका जो dissertation है, आपके आपको जो टाइम दिया है उसके अंदर आपको वो फिनिश करना है, तभी उसका इम्पोर्टेंस है ना. ओके, देन करेक्ट वे ऑफ राइटिंग डिसर्टेशन थेसिस. आपका जो काम है, द डिसर्टेशन वर्क यू हैव डन इन योर लास्ट सेमेस्टर, दैट शुड बी फॉलोड बाय अ प्रॉपर फॉर्मेट. ओके, सो द thesis you will be writing will have some format, so we will discuss that also. So let's start with what is dissertation. So I have written a single sentence about dissertation is dissertation. So what is dissertation? The dissertation is a small research work need to be finished within a semester. आपको जो लास्ट सेमेस्टर है उसके खत्म होने से पहले आपको एक स्मॉल रिसर्च कंप्लीट करना होता है, उसको हम डिसर्टेशन बोलते हैं. पर व्हाट इज रिसर्च? सो रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन. वो प्रॉब्लम, आपके सामने कोई अगर प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल लैंड प्रोडक्टिविटी. सो there is a village, the farmers are doing uh, एग्रीकल्चर फ्रॉम मेनी ईयर्स. पर कोई एक विलेज है जहाँ पे फार्मर्स लोग बहुत सालों से खेती कर रहे हैं, पर पिछले कुछ सालों से वहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया है. तो ये आपके सामने एक प्रॉब्लम है. तो उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन की कमी हो गई सॉइल में, या फिर उन लोगों ने फर्टिलाइजर्स कुछ गलत इस्तेमाल किए, केमिकल कुछ गलत इस्तेमाल किए, उसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो गया. सो द रीजन कैन बी एनी वन. Okay, so you will find out the proper reason and you will give a solution to this problem. That thing is known as research. Okay, so research duration is totally depend on the topic. आप कौन सा टॉपिक डिसाइड करते हो उसके ऊपर आपका रिसर्च का टाइम डिपेंड है. देन व्हाई दिस डिसर्टेशन इज इंक्लूड इन योर सिलेबस. आपको ये जो डिसर्टेशन है वो क्यों करना है? क्योंकि this is included by university or the UGC because to make students familiar with the research procedure. Or after you completing your masters, you will be doing your PhD or MPhil, or you will become a professor. So you at that time you need to do the research. So आपको रिसर्च इसी साल इंट्रोड्यूस अगर कर दिया, तो आप जब रिसर्च करोगे तो जो उसका क्वालिटी होगा वो कुछ अच्छा होगा, कुछ अलग लेवल पे होगा, इसलिए आपको डिसर्टेशन इंक्लूड किया है. ओके, सो आपकी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको एक नया एक्सपीरियंस आने के लिए आपको ये डिसर्टेशन करना चाहिए. ठीक है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है डिसर्टेशन करना. वाई रिसर्च इज इम्पोर्टेंट? सो इट हेल्प टू टेस्ट द प्रेजेंट नॉलेज. अभी का क्या नॉलेज है सब्जेक्ट में वो टेस्ट करने के लिए
देन टू नो द ऑल पॉसिबल साइड्स ऑफ एन इशू, एक जो इशू है उसके बहुत सारे साइड्स हो सकते हैं, वो डिस्कस करने के लिए रिसर्च किया जाता है। देन टू प्रोवाइड ऑथेंटिक गाइडेंस टू अ प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है उसको जब गाइडेंस देते हैं तो वो ऑथेंटिक होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए, इसके लिए रिसर्च करना पड़ता है। देन इट इंक्रीजेज द नॉलेज ऑफ अ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट में कुछ नॉलेज है उसको बढ़ाने के लिए, उसको मोर इंफॉर्मेटिव करने के लिए हमें रिसर्च करना पड़ता है। देन टू प्रेडिक्ट द चेंजेस और ट्रेंड्स, चेंज प्रेडिक्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज हम बोल रहे हैं, तो ये क्लाइमेट चेंज हम किस हिसाब से प्रूव कर रहे हैं। सो रिसर्च में बहुत सो जो फॉर एग्जांपल ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, सो ग्लेशियर कैसे मेल्ट हो रहे हैं, कितने सालों से मेल्ट हो रहे हैं, सो उसका हम स्टडी करते हैं, सिस्टमैटिकली स्टडी करते हैं कि पिछले 20 साल पहले जो ग्लेशियर्स यहाँ पे मेल्ट होते थे, वो अभी वो जो ग्लेशियर्स है वो ज़्यादा मेल्ट हो रहे हैं। 10 साल पहले ऐसा था, 20 साल पहले ऐसा था, अभी ऐसा है, और आने वाले 50 सालों में कैसा रहेगा। सो दिस इज वन ऑफ द ट्रेंड। ओके, सो ट्रेंड एनालिसिस में हम ये सब करते हैं, और उसके बाद हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले सालों में कैसे क्लाइमेट रहेगा। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रेडिक्ट द चेंज। ओके, उसके लिए हमें रिसर्च करना पड़ता है। देन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, जैसे अभी मैंने आपके पास एक प्रॉब्लम रखा था कि लैंड प्रोडक्टिविटी क्यों कम हो गई, तो ऐसे जो कोई भी प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल माइग्रेशन एक प्रॉब्लम हो सकता है, पॉवर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एक प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए हमें रिसर्च करना पड़ता है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द डेजर्ट, व्हाट इज डिसर्टेशन एंड व्हाट इज रिसर्च एंड व्हाई रिसर्च इज इम्पोर्टेंट। ओके, सो वी विल गो फॉरवर्ड। हाउ टू सिलेक्ट अ टॉपिक फॉर डिसर्टेशन, आपका जो अभी आपने डिसर्टेशन ऑप्शन ले लिया, सब्जेक्ट आपने चूज कर लिया, तो आपके अदर सब्जेक्ट के साथ आपको डिसर्टेशन भी करना होता है। तो इस डिसर्टेशन का जो टॉपिक है वो आप कैसे फाइंड करोगे। सो देर आर सम सिंपल स्टेप्स। यू नो योर इंटरेस्ट एरिया बेटर देन अदर्स। ओके, सो आपको आपकी रिसर्च, आपके इंटरेस्ट एरिया से कुछ टॉपिक ढूंढने हैं, 5-6 टॉपिक आप लिस्ट कर सकते हो। जो लिस्ट किए हुए टॉपिक्स है उनमें से, सो आपको हर टॉपिक में आपके पास एक रिसर्च प्रॉब्लम होना चाहिए। ठीक है, सो रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे अभी लैंड प्रोडक्टिविटी क्यों कम हो रहा है, दिस इज अ रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च प्रॉब्लम यू हैव। सो लाइक दैट ओनली यू शुड हैव अ रिसर्च प्रॉब्लम इन योर टॉपिक। ओके, सो आप ऐसे 6-7 टॉपिक लिस्ट बना सकते हो। देन आफ्टर मीटिंग योर गाइड, डिस्कसिंग विथ योर गाइड, you can shortlist the finalize one topic। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ नीड ऑफ रिसर्च, क्या वो रिसर्च करना सच में ज़रूरी है। देन द टाइम रिक्वायर फॉर द रिसर्च, क्या वो रिसर्च 4 महीने के अंदर ख़त्म हो सकता है, उस हिसाब से आपको फाइनलाइज टॉपिक करना है। ओके, देन हाउ टू गिव अ टाइटल टू योर डिसर्टेशन टॉपिक। सो द टाइटल इज, इफ द टाइटल इज गुड, द गुड पेपर हैज़ गुड टाइटल, ऐसे हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस टाइटल में से आपको ये जो पढ़ने वाला है उसको ये एक्सप्लेन होना चाहिए कि आपने उस रिसर्च में क्या काम किया है। ठीक है, सो आफ्टर रीडिंग योर टाइटल द पर्सन शुड अंडरस्टैंड व्हाट वर्क यू हैव डन इन योर रिसर्च और इन योर वर्क। ओके, सो देयर आर सम एग्जाम्पल आई हैव गिवन for how the dissertation title should be. So one example is late Holocene environmental magnetic changes at Lampokhri Lake, Sikkim Himalaya implication to climate change response। क्लाइमेट चेंज स्टडी करने के लिए कहाँ पे गया है, लामपोखरी लेक, सिक्किम हिमालय में जो लामपोखरी लेक है वहाँ पे कुछ सैंपल उठा के उन्होंने इन्वायरमेंटल मैग्नेटिक चेंजेस के हिसाब से क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है उसको प्रूव करने की कोशिश की है। ये इस टाइटल में से हमको समझ में आ रहा है। ओके, यू कैन गो फॉर मेनी टाइटल्स, यू कैन सर्च on internet, you will get many of the titles and you will know how the research title or how the dissertation title should be। Okay, so the next one is points need to be covered in dissertation layout। So an ideal layout I have given to you, so we will see one by one which topic, which title or which points you should be covered in your dissertation। So first one is introduction to your problem, then aims and objective of the study, review of literature, study area, hypothesis,
data and methodology, analysis, description and interpretation, then results, conclusion, and then reference or bibliography. Okay, so now we will see one by one. First one is introduction to the problem, right? So here in this heading you will need to introduce your topic. आप कौन से टॉपिक पे स्टडी करने वाले हो आपको इस टाइटल में और इस हेडिंग में आपको एक्सप्लेन करना है. ओके, सो यू कैन ऑल्सो इंक्लूड द सिग्निफिकेंस ऑफ योर वर्क, व्हाई योर वर्क इज इम्पोर्टेंट. ओके, वो आपको इस यहाँ पे बताना है. Now we will understand the above mentioned points here. So first one is introduction to the problem. So introduction of your topic. What is your topic and what you are going to study in your work, you need to be explained in this introduction. Okay, so you can also include the significance of your work. Okay, so this introduction should clarify the topic in limited words. आपका जो इंट्रोडक्शन है वो लिमिटेड वर्ड्स का होना चाहिए. ज़्यादा 4-5 पेज भर के लिखने का कोई मतलब नहीं है. आपका इंट्रोडक्शन डिसर्टेशन के लिए 2 पेज में इज इनफ, 1 और 2 पेज इज इनफ फॉर योर इंट्रोडक्शन. देन एम एंड ऑब्जेक्टिव. So there should be only one aim and 3 to 4, maximum 3 to 4 objective you should be followed in your research work. Okay, every work has main purpose, so that will become your aim, and objective should reflect the things you want to know from your dissertation. And most important thing, the objective your objective should be clear. ऑब्जेक्टिव हमेशा क्लियर होना चाहिए कि हमें ये चीज़ें वहाँ से पता करना है उस डिसर्टेशन के वर्क में से. ठीक है, सो एम एंड ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी मोर देन वन. एम एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव 2-3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ओके, देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर. दिस इज वन ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इन योर dissertation work. The review of literature. The topic you choose for dissertation is maybe studied before. आपने जो टॉपिक लिया है उसके ऊपर कुछ भी स्टडी हो चुका होगा या फिर हुआ होगा. ज़रूरी नहीं है कि हुआ है और हुआ होगा, पर जो कुछ भी स्टडी किया है उस पर किसी ने, वो आपको देखना है, वो आपको ढूंढना है. दैट इज नोन एज रिव्यू ऑफ लिटरेचर. So you go to that research papers and understand some concept, and if you think that you can apply these methods or these concepts in your research, so you can apply, but you need to give the proper credit to that authors. Okay, so that is comes in your review of literature. At the last I will give example or a demo dissertation thesis to you to make you people understand more better. Okay, now study area. आप जो कुछ भी स्टडी कर रहे हो या फिर जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो वो कहाँ पे कर रहे हो, दैट विल बी योर स्टडी एरिया. The area you have selected for your study should become in your study area title. Okay, so for showing your study area you can use maps. Okay, so here I have given some of the examples. Okay, so this type of maps you can be used to show your study area. Okay, then you can also give the details of your study area like geomorphology, soil type, geology of that region, etc. you can give. Then the hypothesis. Okay, so what is hypothesis, student? Hypothesis is an assumption you made while starting your dissertation. आपका रिसर्च शुरू करने से पहले आप कुछ चीज़ें एज्यूम कर लेते हो. जैसे कि अगर लैंड प्रोडक्टिविटी कम हो रही है तो आपने कुछ एज्यूम कर लिया कि फर्टिलाइजर्स के ज़्यादा यूज़ करने की वजह से ही वहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम हो गई है. दिस इज़ वन ऑफ द योर एजम्पशन. ये जो एजम्पशन है या फिर जो हाइपोथेसिस है ये आप बिगिनिंग में मतलब शुरुआत के टाइम पे ही वहाँ पे आपको लिखना है या फिर मेंशन करना है और एट लास्ट में उसको आपको प्रूव करना है बाय यूजिंग सम टेक्निक. आप कुछ टेक्निक यूज़ करके, फॉर एग्जांपल डेटा कलेक्ट करते हो, उसके बाद कोई मैप बनाते हो या फिर कोई ग्राफ निकालते हो, जो भी टेक्निक यूज़ करके आप उसको प्रूव करते हो, दैट इज़ नोन एज हाइपोथेसिस. ओके, सो ऐसे जो हाइपोथेसिस है वो ह्यूमन ज्योग्राफी में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं.
So if you have any hypothesis, then mention in the beginning and prove at the end. अगर आपका कुछ hypothesis है तो आपको शुरुआत में ही उसको mention करना है एंड आखिर में उसको अगर वो एक्सेप्टेबल है या फिर नॉन एक्सेप्टेबल है वो आपको प्रूव करना है. ओके, ऐसा नहीं कि शुरुआत में हाइपोथेसिस आपने मेंशन किया और लास्ट में उसका कुछ जिक्र भी नहीं है. सो दैट शुड नॉट बी डन योर रिसर्च. ओके, so here some of the example of hypothesis is given. Okay, so you can read out later. Then data and methodology. So आपका टॉपिक फाइनल हो गया, आपका हाइपोथेसिस अगर है नहीं है वो डिसाइड हो गया, स्टडी एरिया डिसाइड हो गया, कौन से टॉपिक पे आप रिसर्च करने वाले हो वो डिसाइड किया. तो आप उसके बाद आपका एक्चुअल में जो वर्क है वो शुरू हो जाएगा बाय कलेक्टिंग सम डेटा. ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई माइग्रेशन से रिलेटेड है या फिर कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड जो है तो वो आप क्या करोगे फिर खेती. फॉर एग्जांपल लैंड प्रोडक्टिविटी कम हो गया है तो उसके लिए क्या क्या डाटा हमको चाहिए कि वो सॉइल का पैरामीटर्स, पीएच क्या है सॉइल का, और न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, कौन से कम हो गए, तो पिछले साल का और 5 साल पुराना अभी का, ये सब हमको ये सब डेटा लगेगा. सो दैट विल बी आवर डेटा कलेक्शन. ओके, सो देर आर 2 टाइप ऑफ डेटा. प्राइमरी डेटा, जो प्राइमरी डेटा है वो हम पर्सनल इंटरव्यू से कलेक्ट करते हैं और एनी फील्ड वर्क से कलेक्ट करते हैं. देन सेकेंडरी डेटा जो है वो हम उस गांव के ग्राम पंचायत से जो कुछ डेटा चाहिए वो जो लेंगे, दैट विल बी आवर secondary data. Okay, so data we collect from government or non-government bodies that comes in the secondary data. Okay, so this data collection will be done by us. Okay, by us means by the researcher or the student that are going to do the dissertation. Okay, so वो डेटा को यूज करके हम हमारा कुछ हमारा कुछ रिजल्ट आएगा. ओके, उसको हम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम उसको प्रोसेस करेंगे और बाय यूजिंग सम मॉडल्स और सम टेक्निक्स वी कम टू अ कंक्लूजन, वी कम टू अ रिजल्ट्स. दैट विल बी आवर रिजल्ट. बट वो रिजल्ट आने के लिए हम कुछ मेथड्स यूज करते हैं, कुछ टेक्निक यूज करते हैं, वो आएगा हमारे मेथडोलॉजी में. ठीक है, सो द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन और डेटा नीड टू बी एनालाइज्ड and we use some methods to analyze the data. This is known as methodology. Okay, so methods you use to analyze the data which help you in giving solution to a research problem. आपने जो डेटा कलेक्ट किया है उसका एनालिसिस करके आप कुछ सॉल्यूशन वहाँ पे दे रहे हैं. अगर आपने डेटा कलेक्ट करने के बाद अगर आपका रिजल्ट आ गया है कि फर्टिलाइजर यूज करने की वजह से ही वहाँ पे लैंड का प्रोडक्टिविटी कम हो रहा है, तो आप वो सॉल्यूशन दे सकते हो कि अभी से इसके बाद से ये फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करना चाहिए और ये टाइप के दूसरे टाइप के फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए. ऐसा आप सॉल्यूशन दे सकते हो. कब? जब आपका डेटा कलेक्शन और उसका एनालिसिस और मेथोडोलॉजी यूज़ करके आप ये प्रूव कर दोगे कि दिस फर्टिलाइजर आर नॉट सुटेबल फॉर दिस टाइप ऑफ सॉइल. ओके, सो डेटा कलेक्शन एंड मेथोडोलॉजी हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इन योर रिसर्च. देन एनालिसिस, डिस्क्रिप्शन, इंटरप्रिटेशन. आपने जो डेटा कलेक्ट किया है, जो मेथोडोलॉजी यूज़ की है और जो भी आपका वर्क है वो एक एक्सप्लेन करने का एक तरीका होता है, या उसको इंटरप्रिटेशन करने के लिए आपको कुछ ग्राफ्स और पाई डायग्राम्स आपको यूज़ करना चाहिए. ओके, सो द डेटा एंड मेथोडोलॉजी लीड्स टू द यूज़ ऑफ मॉडल्स और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स टू एनालाइज द डेटा. आपने जो डेटा कलेक्शन किया है उसका आप प्रोसेस करने के लिए कुछ मॉडल्स यूज करते हो, कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करते हो. सो दैट विल बी योर मेथोडोलॉजी एंड एनालिसिस पार्ट. ओके, आफ्टर डेटा प्रोसेस्ड, that editing and tabulation all process, it analyze on different measures like casual and impartial. Then analysis of data should be represented in understandable format like tables, graphs, pie charts, etc. ओके, सो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा लगेगा, अच्छा दिखेगा, और जो गाइड है या फिर जो आपको असेस करने वाले असेसर्स है उसको भी
वो अच्छी तरीके से इंटरप्रेट वो कर सकता है। ओके, देन रिजल्ट्स। ओके, आपका टॉपिक हो गया, उसके उसके ऊपर आपने कुछ काम किया, डेटा कलेक्शन किया, उस डेटा को प्रोसेस किया, मेथड्स यूज़ किया, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स यूज़ करने के बाद आप कुछ रिजल्ट्स आपके हाथ में आए, तो वो रिजल्ट्स आप यहाँ पे रिजल्ट्स के अंदर मेंशन करोगे। ओके, हियर यू विल गिव द रिजल्ट्स ऑफ डेटा एनालिसिस। The representation of results may be in the form of tables, graphs, etc. आप कोई भी यूज कर सकते हो। Here hypothesis should be accepted or rejected. आपका जो कुछ भी hypothesis है वो यहाँ पे accept या फिर reject होना चाहिए, अगर आपने कुछ hypothesis पहले से ही लिया है तो। ओके, then conclusion. After your results, there will be a conclusion in 1 or 2 paragraphs. वहाँ पे आप कुछ अगर कोई सॉल्यूशन दे सकते हो प्रॉब्लम के लिए, कुछ रिकमेंडेशन दे सकते हो, तो वो आप कंक्लूजन के बाद और कंक्लूजन में दे सकते हो। यूर एम एंड ऑब्जेक्टिव मस्ट बी फुलफिल्ड इन दिस कंक्लूजन। आपने जो एम एंड ऑब्जेक्टिव शुरुआत में जो डिस्कस किए हैं या फिर जो तय किए थे, वो आप फुलफिल कर पाए या नहीं कर पाए, ये आपको कंक्लूजन में बताना है। ओके, यू आर गोइंग टू प्रूव दैट यू हैव फुलफिल्ड विद दिस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। ओके, देन रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी। आपका जो रिसर्च है, आप वो रिसर्च करने के लिए आप कौन से रिसर्च पेपर यूज़ किए, वो आपको यहाँ पे रेफरेंस में मेंशन करना होता है। ओके, सो दिस इज द प्रॉपर क्रेडिट यू हैव गिवन टू द ऑथर्स दैट रिसर्च पेपर यू हैव यूज्ड, और जिन लोगों का आपने हेल्प लिया है अपने रिसर्च में। ओके, so reference are the list of research papers, reference books or reports used in the whole dissertation or a research. Okay. Okay, how to start your dissertation work? Okay, when to start? The question arises then immediately after you opt for dissertation course. जिस दिन आपने dissertation का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, उस दिन से आपका काम शुरू होना चाहिए। ओके, इफ इट इज़ कंपल्सरी टू यू देन इट्स गुड फॉर यू। अगर डिजर्टेशन आपके लिए कंपल्सरी है तो ये आपके लिए अच्छा है, आपके करियर के लिए अच्छा है। आपको रिसर्च पता चल जाएगा आपके फाउंडेशन स्टेज में। ओके, सो देन यूर डिसाइडेड फील्ड वर्क नीड टू बी डन इन वेकेशन। अगर आपका टॉपिक फाइनलाइज्ड है, आपका फील्ड वर्क फाइनलाइज्ड है, तो आप ये जो आपके वेकेशन है वहाँ पे ही अपना फील्ड वर्क कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि आने के बाद या फिर आपका सेमेस्टर शुरू होने के बाद आप डायरेक्टली एनालिसिस पार्ट को शुरू कर सकते हो। ठीक है, देन आफ्टर यू फाइनलाइज द टॉपिक स्टार्ट कलेक्टिंग रिसर्च पेपर। व्हेन यू फाइनलाइज विद द टॉपिक स्टार्ट कलेक्टिंग द रिसर्च पेपर ऑन अ सिमिलर टॉपिक स्टडीड ओवर द वर्ल्ड। आप जहाँ कहीं भी दुनिया में आपके टॉपिक के ऊपर कुछ भी स्टडी हुआ है तो आप वो शुरू कर दो उसको ढूंढना। ठीक है, सो दैट विल बी हेल्प इन योर लिटरेचर रिव्यू। बट प्लीज take note that whichever research paper or report you will be using for your research or your dissertation, you should make a list of that, because at the end you will forget which research paper you prefer, which not preferred. Okay, so it will be complete jumbling for you to what research paper you should mention in your references. Okay, so please make a list and clear this in clear this. Okay, so prepare a list, chart or a table to maintain रिसर्च पेपर यू प्रेफर्ड। आप कोई लिस्ट बना सकते हो, चार्ट बना सकते हो या फिर टेबल बना सकते हो आपके आप रिसर्च पेपर जो आपने प्रेफर किए उसको मेंटेन करने के लिए। ओके, देन करेक्ट प्रोसीजर टू कंप्लीट योर डिसर्टेशन ऑन टाइम। आपका जो डिसर्टेशन है वो आप टाइम पे कैसे कंप्लीट करना है, उसका एकदम सिंपल आंसर है कंटिन्यूटी। आपको हमेशा हर दिन कुछ ना कुछ डिसर्टेशन का काम करना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैंने 2 दिन बहुत काम किया और 3-4 दिन कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं चलेगा। डेली आपको कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। उसके लिए यू कैन मेक अ टाइम टेबल चैप्टर वाइज, लाइक इंट्रोडक्शन एंड स्टडी एरिया आई विल कंप्लीट इन दिस डेज। ओके, देन सेकेंड चैप्टर data and methodology I will complete it up to this days. Okay, so you can make a timetable, आपका कितना काम आपको कितने दिनों में खत्म करना है, so you can finalize that time and it will be helpful to complete your dissertation on time. Do at least some work of your dissertation daily.
ओके, टू अवॉइड लास्ट मिनट प्रेशर। आखिर में बहुत प्रेशर आ जाता है स्टूडेंट्स को, कुछ रोने भी लग जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो गिव डेली फॉलोअप टू योर गाइड, आपको आपके डेली फॉलोअप आपके गाइड को देना चाहिए। मेंटेन ऑल द रिसर्च पेपर रिपोर्ट्स यू यूज इन योर पेपर एक्यूरेटली सो यू कैन एक्सेस देम वेन एवर इट इज़ नेसेसरी। ऐसा नहीं कि अभी मुझे ये रिसर्च पेपर चाहिए और गाइड ने आपको पूछ लिया कि दिस रिसर्च पेपर आई वांट फॉर द स्टडी, सो यू शुड बी एबल टू गिव दैट रिसर्च पेपर or access that research paper immediately when you want that। ओके, सो उसके लिए आपको उसको प्रॉपरली मेंटेन करना है रिसर्च पेपर, और जो आप प्रिफर नहीं कर रहे हो उसका भी आपको ध्यान रखना है, ताकि बाद में आपको जम्बलिंग नहीं होना चाहिए कि कौन सा मैंने यूज़ किया है कौन सा नहीं किया है, ठीक है। सो ऑलवेज प्रिपेयर और डाउनलोड अ फॉर्मेट ऑफ साइटेशन। रिसर्च पेपर का एक प्रॉपर साइटेशन होता है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है मैंने। सो दिस इज अ प्रॉपर citation format, okay, you need to follow in your dissertation, okay, you can read it out। ओके, क्या क्या मेंशन करना है दैट आई विल टेल यू। करेक्ट वे ऑफ राइटिंग डिसर्टेशन थीसिस, कैसे डिसर्टेशन आपको राइट करना है या फिर टाइप करना है। ओके, राइटिंग मीन्स टाइपिंग ऑफ योर डिसर्टेशन थीसिस। ऑलवेज फॉलो द लेआउट, आपका जो यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया हुआ जो भी लेआउट होगा, ओके, उसको आपको फॉलो करना है। देन डिसाइड द फॉन्ट साइज एंड हेडिंग एंड टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू योर गाइडलाइंस। आपको जो कुछ भी यूनिवर्सिटी ने या फिर आपके गाइड ने जो कुछ भी गाइडलाइंस दिया है उसको फॉलो करना है। फॉन्ट साइज कितना चाहिए, हेडिंग का साइज कितना चाहिए, टेक्स्ट का साइज कितना होना चाहिए, ये सब प्री मेंशन और प्री डिसाइडेड होता है, आपको वो चेक करना चाहिए और उसके बाद आपको अपना डिसर्टेशन राइट करने के लिए टाइप करने के लिए शुरू करना है। ओके, देन वेन एवर यू हैव टू गिव रेफरेंस ऑफ your research article or reports to your sentences। आपको जब कभी आपको कुछ सेंटेंस है जो आपने किसी रिसर्च पेपर से लिया है, ओके, एज इट इज नहीं लेना है, ओके, दैट विल बी अ केस ऑफ प्लेगरिज्म दैट आई विल डिस्कस लेटर। सो आपको कैसे लिखना है अगर सेंटेंस के बाद में, सो ऑथर नेम, अगर कोई ऐसा रिसर्च पेपर है जिसका एक सिंगल ऑथर है तो जस्ट you have to write author name and year, okay, for single author। then if there are two authors, then first author name and second author name and then year, okay। then uh, the examples are given Sangod and Mazri 2007, okay। so if there are more than two, then you can write first author name and it all and year of publication, okay। फॉर एग्जाम्पल बाली एटॉल 2016, ओके, अगर वहाँ पे दो से ज़्यादा ऑथर है तो सबका आप नाम लिख नहीं सकते, 5 लोग अगर है वहाँ पे, सो इट विल बी सो लेंदी, इट विल नॉट गुड, ओके। आपको आपके रिसर्च पेपर में या फिर डिसर्टेशन थीसिस में वो अच्छा नहीं लगेगा कि आपने इतना बड़ा कुछ लिखा है, ठीक है। सो आपको जस्ट सिंगल फर्स्ट ऑथर का नेम और उसके बाद एटॉल लिख के यू कैन राइट, बट ये जो एटॉल है इट विल बी मेंशन एट द लास्ट। आपको जो रेफरेंस आप दोगे वहाँ पे वो सब ऑथर्स के नाम डिस्प्ले होंगे और होने भी चाहिए, ओके। एवरी टेबल फिगर फोटोग्राफ मस्ट हैव कैप्शन, ऐसे नहीं कि कोई भी रैंडम फोटो दिया कोई भी टेबल दे दिया उसके नीचे कैप्शन होना चाहिए कि ये टेबल क्या शो करता है, ये इमेज किस चीज़ का है, ये फोटोग्राफ कहाँ का है, कौन से चीज़ का है, दैट शुड बी मेंशन अंडर द फोटोग्राफ इन विच फॉर्मेट यू कैन सी लेटर, ओके। एट द एंड द लिस्ट ऑफ रेफरेंस शुड बी गिवन एंड कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट लाइक ऑथर्स नेम्स। आखिर में आपको रेफरेंस देना है तो उसमें उस रेफरेंस में क्या क्या होना चाहिए, ऑथर्स नेम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, टाइटल ऑफ द आर्टिकल और अ बुक, जो भी रिसर्च पेपर है उसका टाइटल, देन नेम ऑफ द जर्नल, वो कौन से जर्नल में पब्लिश हुआ है, देन नेम ऑफ द पब्लिशर ऑफ अ बुक, अगर वो बुक है तो उस बुक का पब्लिशर कौन है, देन प्लेस ऑफ पब्लिकेशन कहाँ पे है, इंडिया में और बाहर है, कौन सी सिटी में है, ओके। देन वॉल्यूम ऑफ जर्नल्स और पेज नंबर अगर कोई बुक है तो, ठीक है। ये सब चीज़ें आप इंक्लूड करोगे तब आपका डिसर्टेशन थीसिस अच्छे से दिखेगा और अच्छे से आप लिख पाओगे, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड all the points clearly।
So here I will give you an example or a demo dissertation, you can say, the my dissertation. Okay, your dissertation should be 10 times better than me. Okay, because you are be doing dissertation now, and I have given an example. Okay, so this is the title of research paper, title of dissertation thesis. Okay, so dissertation is submitted to this. So this will be your first page. You will understand all these things. Then table of contents you will be writing over then. Okay, you can see a proper format like uh, acknowledgement, table of contents, list of figures, tables. First chapter is introduction. इंट्रोडक्शन में क्या है, प्रॉब्लम का इंट्रोडक्शन है, सिग्निफिकेंस है, लिटरेचर रिव्यू है, एम, ऑब्जेक्टिव, ओके, स्टडी एरिया, देन डेटाबेस एंड मेथोडोलॉजी। ओके, क्या डाटा कलेक्ट किया है, कौन सा मेथोडोलॉजी यूज़ किया है। देन सेकेंड चैप्टर में इन्वायरमेंटल मैग्नेटिज्म। ये इन्वायरमेंटल मैग्नेटिज्म मैंने यहाँ इसके ऊपर मेरा रिसर्च प्रॉब्लम था, इसलिए ये इन्वायरमेंटल मैग्नेटिज्म मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ा। ओके, आपके टॉपिक में भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो आपको वो वहाँ पे मेंशन करना होगा। ओके, so likewise you are going to complete your dissertation work. Introduction, you will be given literature review. Okay, here you can see how the reference is given. Okay, et al 2015. So here you can understand there are more than a single author. Okay, then this is the location map I have used for show my study area. Okay, so likewise you can complete your dissertation work. If you want this PDF or you want some more information about dissertation, you can comment me. Okay, so surely I will go through your comments. I hope you understood everything about dissertation and you will complete the proper way of your dissertation. Okay, thank you so much.